The accused. My colleague Shahid Ansari is with us from the broadcast to share further details on this. Shahid, of course, the CCTV has played a very crucial role. We've taken our viewers through how exactly, the plot behind what's transpired, the tragedy that has occurred, really has been unraveled by the police. Walk our viewers through what are you gathering from your police sources? देखिए जो सीसीटीवी आया है, दरअसल ये जो पूरा मामला है 3 लोगों के बीच में है। एक तो केतन जो है, जो इस पूरे मामले में जो है मुख्य किरदार है केतन अग्रवाल, दूसरी है सिया गोयल और तीसरा है चेतन चौधरी। देखिए हुआ ये था कि इससे पहले जब ये लोग जो है वहां पहुंचे थे तो 14 जून को भी ये वहां पहुंचे थे और उस दौरान जो है संभव है कि ये प्लानिंग विफल रही हो, जिसके बाद जो है प्लानिंग 18 को की गई, 18 जून को। और 18 जून को जो प्लानिंग की गई है उसमें आप देखिए ये बात कही गई थी कि जो मृतक हैं वो जो है तेज हवा के चलते जो है वो 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। लोहगढ़ के जो किला है वहां पे जो है, जबकि आपको मैं बताऊं कि पुलिस को 2 चीजों पे जो है बहुत ज्यादा वो हुआ। एक तो ये कि जो केतन है उनकी बहन से सिया की बातचीत हुई थी और बातचीत में जो है सिया ये बात जो है बराबर बता नहीं पा रही थी कि आखिर किस तरह से जो है तेज हवा चली और वो वहां गिर गए और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो केतन की बहन को इस बात का शक हुआ कि ये जो बातें सिया बता रही हैं, इस बातों में जो है बहुत ही लूप होल से है, झोल है। तो इसको लेकर केतन की बहन ने केतन के पिता को ये बात बताई कि ये जो भी चीजें बता रही है ये इसमें कुछ तो शक है और कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो यकीन करने लायक नहीं है। क्योंकि केतन जो है एक बढ़िया जो है वो ट्रैकिंग करने वाला लड़का था और बहुत ही उसके लिए बहुत आम सी बात थी। तो एक लड़का जो है कैसे जो है 400 फीट खाई में तेज हवा के झोंके से गिर जाएगा, इतनी तेज हवा थी कि वो गिर जाएगा। बहरहाल केतन की बहन ने केतन के पिता को बताया और उसके बाद उनके पिता ने पुलिस से संपर्क किया। सारी चीजें फिर परत दर परत खुलना शुरू हुई। फिर पुलिस ने जब इस मामले में तफ्तीश करनी शुरू की तो पता ये चला कि जिस तरह से सिया जो बता रही है सिया और सिया का मोबाइल रिकॉर्ड और ये सारी चीजें जब देखी तो एक जिसका जिक्र हुआ है चेतन चौधरी का, फिर उसका नाम सामने आया तो पता ये चला है कि 18 तारीख को जो है वहां पे वो भी वहां मौजूद था। ये बात टावर लोकेशन से मालूम पड़ी। जब ये बात मालूम पड़ी टावर लोकेशन उनके एक ही जगह के थे और फिर पुलिस ने जो है सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। And exactly, we've seen the CCTV footage. Shayad, we're also being joined by SP Vaid, the former DGP. Thank you so much, sir, for taking out the time and speaking to us on NewsX. Of course, this has been a shocking murder case that has come to light. A young man has lost his life because his fiancée and her alleged lover allegedly pushed him into a deep gorge at the Lohagarh fort. There are sources that have indicated that this is a premeditated murder, and the police has managed to track down the accused and expose the conspiracy through a CCTV footage that showed the accused in a hoodie in 33 degrees Celsius heat. That's not all. Forensic evidence was also then, examined by the police to sort of nab them and bring them into custody. In your assessment, how will the case really proceed from here? What is really required from the police's end to strengthen the case? See, the digital evidence do not lie. So I think the call record of both Shia and her fiancé Chetan Chowdhury is quite. I think it will reveal almost everything. What were they talking for so many hours? So many such a long talk. You don't talk to a stranger like this unless you are a fiancé or you are a lover or somebody so close. So the CCTV footage, the other digital evidence, I think it will bear out everything and ultimately pin down the conspiracy. So digital evidence is very, very clear, it seems. And the murder of Ketan, I think, will be resolved. It will be completely. And what is required is collecting all these aspects of the hard evidence so that the accused cannot escape during the arguments in the courts.
So we need to pin him down with all those digital evidence, circumstantial evidence, CCTV footage, call record. All those things would be required, even forensic evidences. All this will actually pin down and get them convicted. Jay. All right, sir. I'd like to thank you for taking our time and speaking to us. I'd like to go back to my colleague Shahid, who was, of course, giving us all of the details. Shahid, what else has your sources in the police really revealed to you? As mentioned earlier, of course, thousands of call logs were then identified and skimmed through in order to pinpoint what's really gone behind this. Meanwhile, the father of the victim has claimed that there were attempts made before this as well, that it was premeditated. देखिए, जब इस पूरे मामले को लेकर आप देखेंगे तो पहले तो परिवार वालों को भी जो है इस बात का यकीन नहीं था कि जो चीजें हुई हैं या जो बाद में पुलिस ने उसको वो किया। लेकिन जब केतन की बहन से और सिया की बातचीत हुई, तो इस बातचीत के बाद जो है बहुत सारे चीजों पर पर्दा उठा और फिर उसके बाद उनके पिता ने जो है पुलिस से संपर्क किया और बताया कि चीजें जैसा दिख रही हैं वैसा है नहीं। फिर पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इनके टावर लोकेशन, सीडीआर, इसकी बुनियाद पर पुलिस ने इन सभी जगहों पर जो है तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश करने के बाद जब यह पता चला कि 1 साल से जो है सिया जो है चेतन चौधरी के संपर्क में थी, यानी उसके रिलेशन में थी, और ये बात भी सामने आई है कि 14 जून को भी जो है ये लोग उस लोहगढ़ किले पर गए हुए थे। वो अलग बात थी कि शायद संभव है कि इनको वहां मौका नहीं मिला। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिया जो है और ये प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे, लेकिन देखिए इस दौरान केतन को ये बात पता नहीं थी कि उनका पासपोर्ट वहां है नहीं या मिसिंग है। जैसे ही वो पुणे से निकले, मुंबई एयरपोर्ट पर भी आए। एयरपोर्ट पर आने के बाद सिया कहती है कि पासपोर्ट मिल नहीं रहा, और ये बात सिया को मालूम थी। यानी कहीं ना कहीं जो है बाली का जो प्लान था वो कैंसिल करने के लिए ये जो है नाटक किया गया कि केतन का जो है पासपोर्ट मिसिंग या गायब हो गया, कुछ इस तरह से करना ताकि बाली जा ना पाए। 14 जून को ये वहां गए लोहगढ़ पे, फिर उसके बाद जो है 18 को गए, और 18 को जाने के बाद इन्होंने जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस आया, जो युवक है उसके कान में हेडफोन और मुंह पे जो है मास्क पहने हुए ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपाई जा सके। तो ये सारी चीजें पुलिस के लिए जो है बहुत अहम रही है। फिर उसके बाद पूछताछ हुआ। पूछताछ में जो है दोनों के बयान जो है मैच नहीं खा रहे थे, और कई बातें झूठ भी बोली सिया ने। फिर उसके बाद जो है पुलिस ने अपना तरीका अपनाया और उसके बाद दोनों ने जो है ये कबूल किया। ना सिर्फ कबूल किया बल्कि पूरी वजह बताई है, और ये बताया है कि तकरीबन 4,000 से ज्यादा कॉल्स और कई तकरीबन 200 से 250 घंटे जो है कॉलिंग थी। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि सिया का जो है अफेयर कहीं और रहा है। और इसके बाद सिया ने जो है केतन को यहाँ पे जानबूझकर लाया। लोहगढ़ फोर्ट में आने के बाद जो है केतन को मौत के घाट उतारने का मतलब यह कि वहां से खाई में जो है धक्का दे के गिरा दिया गया ताकि किसको पता ना चल सके। अब इस धक्का देने वाली चीज को जो है हवा, क्योंकि देखिए लोहगढ़ लोनावला इतनी तेज हवा नहीं होती कि कोई इंसान जो है संभल नहीं पाएगा। और केतन तो जो है वो खुद जो है ट्रैकिंग पे जाता था, उसको जो है बहुत अच्छे अनुभव था, एक्सपीरियंस था, तो वहां पे इतना संभव नहीं था ये चीजें। तो बहुत सारी चीजें थी, और कहते हैं कि कोई भी जुर्म करने से पहले जो मुजरिम है, जो कातिल है, वो कितना भी कोशिश कर ले वो तो छुपता नहीं है। और जब बात पुलिस की आती है, देखिए वहां के एसपी ने ये बात बताई कि जब हमने पूछताछ की और पूछताछ में ये सारी चीजें रिवील हुई, खुलासा हुआ उनका, तो वहां ये पता चला कि केतन जो है बहुत ही अच्छा जो है ट्रैकिंग पे कितने बार वो गया, तो उसको यहाँ पे गिरने का सवाल ही नहीं उठता। उसे ये सारी चीजें मालूम थी। उसके बाद भी जो है ये कहना कि वो तेज हवा के झोंका आया, गिरा नहीं बल्कि उसे गिराया गया, क्योंकि नीचे तकरीबन 400 फीट गहरी खाई है, यहाँ गिरने वाला। And as you mentioned, in fact, there've been 238 hours of conversation between Sia and Chetan Chaudhary that have been recorded by the police. I'd like to thank you, Shahid, for joining us on the broadcast and sharing all those details very comprehensively. Fresh leads have